KD Nigraj College, Belgaum, and our assignment has been assigned that we need to interview our warehouse or transport manager. Okay. So we can get our learnings from them, and we can be equipped with our general knowledge, and it would be help us in our project as well. Okay. So we will be asking you the questions, and you can answer the. Okay. So. First question is brief introduction about the company. Yeah, this is a Prakash Retail Private Limited. First question is brief introduction about the company. Yeah, this is a Prakash Retail Private Limited. Actually, business is going on Prakash Retail Private Limited, and our logo is Harsha. Okay, and this Belgaum branch is started 2007. Almost completed 15 years, and 16 is running here. Then this is a 22 square foot showroom, and total 35 employees there, and including company demonstrator is also there, and plus housekeeping and security is there. Okay, I am the assistant manager of merchandising. Means this is loading, unloading, Yes, all are means customer requirement, Yes, even counter requirement, Yes, where to replace, where I should give supply. All are I am only seeing. Your main warehouse is Belgaum only, or ma'am which other place? No, actually, for Belgaum showroom, Indalga is there. We get like washing machine and refrigerator there. And if we require something more than that, we bring from Udupi. Udupi one CDC central distribution is there. From there, our 16 store is there. Na? They will supply to us. Any requirement means like a customer wants immediately. I did not have that stock. Then they will supply from there. Weekly 2 time vehicle will come. Okay, so how much time it will take from Udupi to Belgaum to bring the goods? No, it will come from if they are in. They will come night. Morning will be here. Okay, 1 day. So one night journey. One night मीन्स वो कैसे मतलब हुबली धारवाड़ सब कंप्लीट करके मेरा इतना ही नहीं देखेंगे, हुबली में भी सेम है और धारवाड़ में भी उनका भी रिक्वायरमेंट रहता है. जो मेरे पास नहीं है वो भी वैसे ही सीडीसी में ऑर्डर देते हैं, मुझे ये चाहिए कस्टमर के लिए है, मीन्स मेरे पास नहीं है तो वो वहाँ पे लिख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम में वो डाल देते हैं. अभी हर्षा का ओन लॉजिस्टिक्स है क्या मैम? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है इसमें? अभी जो मैं ये सीडीसी का बोली ना, मतलब मटेरियल सप्लाई करने के लिए वो हमारा हर्षा का है. हाँ, वो हर्षा का ओन रहता है. तो सब ब्रांच में भी जाता है. मतलब यहाँ से भी दूसरा ब्रांच को भी रिक्वायरमेंट रहता है. अभी मेरे पास है, दूसरे ब्रांच में कस्टमर को चाहिए, तो जब वो व्हीकल आता है ना तब वो हम रिप्लेस करते हैं दूसरे ब्रांच के लिए कहाँ पे भी. और इवन डिफेक्टिव रहा तो भी वहाँ सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में जाके वहाँ से दूसरे सप्लायर को जाता है. ऐसा रहता है. It is only present in Karnataka or any other states? Only now it is only in Karnataka. Yeah, still now in Karnataka. अभी आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स के लिए? लॉजिस्टिक के लिए मतलब हमारा इनवाइस और ये सब ERP है. लॉजिस्टिक परचेजिंग और आउट इन सब ERP में ही होता है. आउट इन के लिए सब डॉक्यूमेंट रहता है हमारा. So the software, like it's connected from the warehouse or like from distribution center? इवन हेड ऑफिस में भी हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है. यहाँ पे अभी मैं डॉक्यूमेंट की तो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा आपको. कौन सा भी आइटम विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं जाता है, कौन सा भी आइटम विदाउट डॉक्यूमेंट चेकिंग नहीं होके अंदर नहीं आ सकता है. नीचे ही चेकिंग रहता है हमारा. वॉशिंग मशीन फ्रिज वहाँ पे उतारते हैं. स्मॉल आइटम यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चेकिंग होता है हमारा. फिर ऊपर आता है तो ऊपर से हम चेकिंग करते हैं. मर्चेंटाइज में मैं मेन हूँ और 2 असिस्टेंट है. वो चेक करते हैं. उसमें कुछ वेरिफिकेशन मतलब ऑब्वियसली मटेरियल थोड़ा नीचे पीछे हो सकता है तो वहाँ पे रहा था. वहाँ एंड से हम क्या करते हैं, सप्लायर को बोलते हैं आप इसके बजाय ये भेजे है. तो वो क्या करते हैं, एक तो रिप्लेस करते हैं, एक तो उसको कुछ सोल्यूशन देते हैं. तो क्लियर होने के बाद हम काउंटर को भेजते हैं. काउंटर में एक शीटिंग चेकिंग रहता है, मतलब जो इन हुआ है ना वो लोग चेक करते हैं. एक करेक्ट रिक्वायर वो डिस्प्ले कर देते हैं. अभी आपकी लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस कैसे करते हैं? लोडिंग और अनलोडिंग मतलब कुछ मटेरियल मशीन कुछ भी नहीं है, मैन पावर यूज करते हैं. गाड़ी आता है, हाउसकीपिंग है, वो अनलोड करते हैं. कहाँ पे अनलोड करना है वहाँ पे वो भी चेकिंग रहता है हमारा. अगर अभी सीडीसी से स्टॉक आया है, हाउसकीपिंग चेकिंग करते हैं, नीचे रखते हैं. हमारा कुछ डालना है तो हम भी डॉक्यूमेंट करके उसमें डाल देते हैं. गाड़ी जाने के बाद चेकिंग कर लेते हैं, मतलब जो आया है वहाँ से भी इंटरचेंजेस सब आता है ना, तो वहाँ पे चेकिंग हो जाता है.
तो वो चेकिंग होने के बाद ऊपर बेचते हैं, नेक्स्ट डे काउंटर वाले चेक करके उनके मैनुअल इक्विपमेंट्स आप लोग क्या यूज करते हैं? मतलब एक बड़ा बॉक्स के लिए हम एक मशीन है, मतलब उसमें रख के ऐसे व्हील में लेके जाने के लिए है, बॉक्सेस सब जाने के लिए लेने के लिए 2 व्हील है हमारे, व्हील मशीन करके। फिर नॉर्मली ऐसा कुछ हाईटेक नहीं है, और लिफ्ट तो है हमारे पास, तो नीचे से ऊपर डालने के लिए लिफ्ट यूज करते हैं, ऊपर गोडाउन है हमारा छोटे के लिए, छोटे छोटे आइटम मतलब प्रेस कुकर मिक्सी सभी है हमारे पास, इवन क्रॉकरीज है, ब्यूटी केयर है, वो सब यहीं पे होता है। और बाकी का सब प्रोडक्ट्स की तरह स्टोर करते हैं बैक एंड स्टोर। ये स्मॉल आइटम ऑलमोस्ट डिस्प्ले ही होता है। अभी एलईडी ये सब डिस्प्ले में कितना रखना होता है उतना रखते हैं, और बैक एंड के लिए एलईडी नीचे बेसमेंट में है। वॉशिंग मशीन फ्रिज तो मैं बोली ना गोडाउन में है, और एसी और माइक्रोन के लिए और एक रूम है, वहाँ पे बैक एंड में रखते हैं। डिस्प्ले के लिए एक रखते हैं, उसका बैक एंड स्टॉक पीछे रखते हैं, और सिस्टम में उनको मालूम पड़ता है कि इतना है इतना नहीं, मतलब हम अपडेट करते हैं उससे। कभी वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो लाइक गोडाउन से यहाँ तक लाने में कितना देर लगता है? लाइक आपका जो नहीं वो मतलब बैक एंड स्टॉक है ना, सिस्टम में अभी बिल करते हैं ना, तो वहाँ पे दिखाते हैं 2 क्वांटिटी है, तो बैक एंड स्टॉक है करके मालूम पड़ता है। तो वो स्टॉक आउट होने से पहले आ जाते हैं। स्टॉक आउट होने के मतलब हम वीकली एक बार चेक करते हैं, थ्रू सॉफ्टवेयर वो स्टॉक मैनेज करते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर में ही आपको मालूम पड़ता है कौन सा कितने दिन में ये मूव हुआ है, तो 0 हुआ तो हम उसके ऑर्डर करते हैं। हाँ, तो वो एचओ में जाता है, की आइटम का सब एचओ में पीओ करते हैं, तो हम एचओ को भेजते हैं, वहाँ पे सब टीम है मर्चेंडाइज, मतलब वाइट गुड्स बोले तो हमारा 4th क्वार्टर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवन ये सब वाइट गुड्स में आता है, और ब्राउन गुड्स बोले तो एलईडी, होम थिएटर ये सब आता है, और जनरल मर्चेंडाइज बोले तो ये क्रॉकरीज, ब्यूटी केयर और किचन इक्विपमेंट बोले तो प्रेशर कुकर, मिक्सी ये सब आता है। तो उसके लिए अगर अलग अलग डिपार्टमेंट एचओ में है, तो अगर मुझे चाहिए अभी 0 हुआ है मेरा स्टॉक, तो मैं नहीं डायरेक्ट सप्लाई को ऑर्डर देती हूँ, मैं व्हाइट गुड्स में एचओ में कौन है उनको मेल करती हूँ, मुझे इतना सामान खाली हुआ है मुझे भेज दीजिए, तो वो सब देखते वेदर शी इज रिक्वायर्ड और नॉट, वेदर दिस इज एंटी मीन्स एक एक आइटम कैसा रहता है, बहुत दिन के बाद सेल हुआ रहता है, तो वो देखते हैं वो सब। अभी सीजन के टाइम में स्टॉक कम रहता है, तब अभी हमको अर्जेंटली चाहिए, तो अभी आप ऑर्डर दिए तो कितने दिन में आ जाता है? अर्जेंट में चाहिए तो हम दूसरे ब्रांच में देखते हैं। एक तो अभी ये आउट ऑफ ये भी सर्विस है, अभी देखिए एक मोबाइल चाहिए मुझे, हमारा स्टोर यहाँ पे भी धारवाड़ में भी है, हुबली में भी है, करेक्ट? सीजन टाइम में उनका भी अभी रश होकर उनका नहीं मतलब एक बार ऐसा होता है कि उनके पास ज्यादा रहता है सामान, मेरे पास 0 है, उनके पास 4 रहता है, तो हमारे इसमें कैसा है मतलब एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम वो कोडिंग डालते हैं, कितने ब्रांच में कितने कितने स्टॉक है सब आता है। तो बाई चांस अभी धारवाड़ में मेरे पास 4 है, मेरे पास 0 है, कस्टमर यहाँ पे चाहिए, तो मैं धारवाड़ को कनेक्ट करती हूँ, वो बस में या यहाँ पे दुर्गाम्बा या सी बर्ड है ना, वहाँ पे डालने के लिए बोलती हूँ, नेक्स्ट डे मिलता है, नहीं तो केएसआरटीसी में भी डालने के लिए मोबाइल छोटा ये है ना, वहाँ से लेके नेक्स्ट डे हम कस्टमर को। मैक्सिमम तुम लोग अपना लॉजिस्टिक्स यूज करते हैं या फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ज्यादा? मैक्सिमम हम थर्ड पार्टी यूज करते हैं, कस्टमर्स को डिलीवरी करने के लिए उसको हमारे के लिए हमारा ही मतलब हर्षा की मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो, तो आउटसोर्स भी है। हाँ, मतलब वो कैसा मतलब वो कस्टमर के लिए स्टॉक देने के लिए, मतलब जो बिल हुआ है वो देने के लिए, मंथ का उनका रीडिंग कैसा रहता है, तो वो रख लिए हैं, एक ड्राइवर और एक गाड़ी है। अभी कस्टमर्स को अभी प्रोडक्ट भेज रहे हैं मैम, उनको घर तक अभी जिम्मेदारी क्या मेन ओरिजिन कंपनी का रहता है क्या? हमारा रहता है, अभी हमारा हर्षा का स्टाफ है देने के लिए, और ड्राइवर भी रहते हैं, और एक आदमी रहता है, फिर हमारा स्टॉक कस्टमर के घर जाके रखने तक हमारा जिम्मेदारी रहता है, इसलिए हम ऑलरेडी डिलीवरी करते हैं, एक एक कस्टमर क्या करते हैं हम ही लेके जाते हैं, तो वो हमारा रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कस्टमर लेके गया है तो डैमेज कुछ हुआ तो कस्टमर का रिस्पॉन्स है, अगर अभी लेके जाने टाइम मेरा डैमेज हुआ ना तो वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं दूसरा पीस देती हूँ, ये हम कंपनी को डिफेक्टिव करके रजिस्टर करते हैं, उसको भी प्रोसीजर है। प्रोसीजर रहता है क्या? हाँ, प्रोसीजर क्या रहता है मैम? अभी प्रोसीजर अभी देखिए मैं एलजी रेफ्रिजरेटर लेके जा रही हूँ, डेंट हो गया, मतलब वो बॉक्स ओपन नहीं किए रहते हैं ना, जब ओपन किए तो डेंट रहता है, कस्टमर के घर गए तो कस्टमर के घर से निकाल के लेके आते, ये नया पीस उनको देते, ये क्या करते कॉल रजिस्टर करते हैं, तो कंपनी वाले आके चेक करते हैं, तो बिफोर एक हमको पीरियड दिए, बिफोर पॉलिसी रहा ना तो ये रिप्लेस करते हैं, नहीं तो कुछ तो उसका उनका प्रोसीजर रहता है, आफ्टर पॉलिसी रहता तो एचओ में देखते हैं, वो रिप्लेस होके कंपनी को जाता है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप लोग?
चैलेंजेस मतलब यही डेंट और यही बहुत फेसेस करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अभी सप्लायर भी कैसा है, उनका भी ओन लॉजिस्टिक नहीं रहता है, हाँ। वीआरएम में बेचते हैं, हाँ। उनका वो उनका लोग किसी का भी third party नहीं, थर्ड पार्टी ही करते हैं। तो थर्ड पार्टी से आने टाइम अगर कंपनी वाले ही भेजे तो उनको रिस्पॉन्स ज्यादा रहता है, ये वाला आते हैं तो कुछ तो उतारने टाइम तो थोड़ा डेंट है, हाँ। और हम क्या करते तब चेकिंग नहीं कर सकते, मतलब बहुत हाँ, आता है ना, हाँ। तो जब कस्टमर के घर नहीं तो कस्टमर के घर लेके जाने टाइम चेक करके जाता है, हाँ। फिर भी बाई चांस छोटा छोटा रहा तो भी कस्टमर एग्री नहीं होता है, तो तब आता है यही चैलेंजेस तो है। हर लॉट में कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव आते हैं? ऐसे 1% 2% ओके ना नहीं आता है, 1-2% आता है, और एक एक तो अभी एलईडी को आप देख नहीं सकते, वो जाके लगाते टाइम डिस्प्ले का कुछ एरर ऐसा कुछ आता है, Okay. वो एक 3% तक आता है, सभी नहीं आता है, मतलब रहता ही है ना मैन्युफैक्चरिंग का सब रहता है उसमें, वो नहीं आता है। तो और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं आप लोग अपने लॉजिस्टिक्स में वगैरह, वेयरहाउस वगैरह से जब प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, और हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप लोग? कुछ इन नहीं, डिलेज वगैरह, नहीं नहीं फिर- नहीं नहीं कुछ नहीं या ऐसा। फिर कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं उसमें जो कस्टमर के पास से रूटीन कंप्लेंट्स आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं, वो मतलब अगर रूटीन कंप्लेंट आया ना हमको मालूम पड़ता है, अभी एक लैपटॉप अगर कुछ भी रहने दीजिए, सेम मॉडल का सेम आया है ना, तो हम कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं वो मतलब परचेज करना है या नहीं, ऐसे कुछ नहीं आते। एक 100 पे एक 2% तो आता है, उसके लिए हमारा अलग डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन, मतलब कंपनी ये करता है, अगर इंस्टॉलेशन करके भी अभी 2 महीने हो गया कस्टमर को कंप्लेंट आ गया तो हम वो भी रजिस्टर करते हैं, तो सप्लाई सर्विस सेंटर से बंदा जाता है वहाँ से, तो अभी सोनी 2 महीने हो गया एलईडी लगा के, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम कॉल रजिस्टर करते हैं, तो हम कस्टमर को भी वही बोलते हैं, कॉल रजिस्टर करने के बाद हम कॉल रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ से सर्विस सेंटर से पर्सन वो कस्टमर के घर जाते हैं, टेक्निकली कुछ रहा तो माइनर रहा तो करते हैं, टेक्निकल रहा तो इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम कस्टमर को दूसरा पीस मतलब उनका मेल आता है हमको, दूसरा दे दीजिए, हम अलग ये कर देंगे, हाँ वो सब हमारा बाद में प्रोसीजर जाता है, ऐसे कुछ बिग नहीं है, एक एक 1% रैश कस्टमर आते हैं, कुछ नहीं कर सकते उनको, मतलब चाहिए करके दिए है ऐसे कुछ आते हैं, वो हैंडल हो जाता है, फिर ऐसे कुछ ये नहीं होता है। और वारंटी और गारंटी से आप लोग कैसे डील करते हैं, लाइक उसमें अभी वारंटी में था तो कुछ तो डैमेज हुआ, अभी घर जाके अभी वही बोली ना, अभी सेम ना, वो वारंटी में ही रहता सेम है, वारंटी। हाँ सेम वारंटी में ऐसा है, अभी आफ्टर जो वारंटी कंपनी वाले रहता है उनके घर को जाकर हाँ डायरेक्ट चेक करते हैं, उनको भी मालूम पड़ता है, मतलब की प्रोडक्ट में अभी फ्रिज वॉशिंग मशीन और एलईडी रहता है ना, हाँ। उसमें सीरियल नंबर करके आता है प्रोडक्ट में, हाँ, ओके, आता है। तो जब वॉल माउंटिंग करते हैं ना, तो वो सीरियल नंबर क्या होता है, पंच होता है, हाँ, तो ये कस्टमर के लिए मतलब वो सर्विस सेंटर वाला बंदा है ना जो किया रहता है, वो क्या करता है आके ये सीरियल नंबर है, मैं वॉल माउंटिंग की हूँ ना, 2 महीने होने के बाद वो सीरियल नंबर ये हुआ, तो कंपनी को भी मालूम पड़ता है ऑलरेडी सोल्ड आउट है ये, वारंटी क्लेम करते हैं। अभी आपकी डिवीजन का मेन वेयरहाउस किधर है मैम? मेन अभी बड़ा वाला एक रहता है ना आपका डिवीजन मतलब ऑल स्टोर का या मेरा बिल्डिंग? धारवाड़ अभी बेलगाम नहीं ना, हाँ। आपकी मेन वही किधर से है? सेंट्रल उडुपी 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 से पूरा हाँ हेड उनका है। हेड उनका ही उधर से वहाँ आता से है। वहाँ से ही आता है, हाँ। मतलब जो सप्लाई से आने वाला आता है हाँ। फिर भी वहाँ से ही ऑलमोस्ट आता है, हाँ। ऑलमोस्ट मतलब 150% वहाँ से स्टॉक आता हाँ। है स्मॉल आइटम्स। ओके। तो मैम आप लोग लाइक टीम को कैसे मैनेज करते हैं, आपका लॉजिस्टिक जो टीम रहता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसमें अगर कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम आते जा रहा है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, अगर टीम में प्रॉब्लम आते जा रहा है तो? टीम में ऐसे Logistic कुछ लॉजिस्टिक टीम में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, मैं एक रहती हूँ, और सप्लायर अभी आने प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब कंपनी से ही आता है, अनलोड करते हैं, हमारा बंदा रहता है, कहाँ पे रखना है, कहाँ कैसे रखना है वो सब बताते हैं, हाँ। तो हो गया फिट। जब लेके जाते हैं तो हमारे स्टाफ रहते हैं डिलीवरी करने के लिए, तो जो मॉडल है वही देख के वो चेक करके वो पैकिंग स्लिप सब रहता है वो देख के जाते हैं, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, फेसिंग नहीं करते। हाँ। ऑफर के टाइम में हैवी वर्क होता है तो उसके लिए मैन पावर आते हैं, हाँ। हाँ, मतलब अभी जो मटेरियल है उससे भी ज्यादा आता है, मतलब हाँ। डबल हो जाता है, डबल मतलब ट्रिपल भी हो जाता है, तो उसके लिए हमको मैन पावर वहां से भेजते, हाँ। मतलब अभी 3 लोग है तो 3 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, तो वहाँ पे भी हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपके पास व्हीकल्स वगैरह कितने हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के वगैरह? अभी तो एक ही है हमारे, मतलब आउट जाने के लिए कस्टमर के लिए, और ऐसा कुछ सोर्सेस नहीं है, और एक बाइक है, बाइक में अगर कुछ वही मैं बोली ना मोबाइल अगर दूसरे ब्रांच में डालना है तो उसमें जाके हम बुकिंग करके आते हैं,
छोटा छोटा आइटम। और आपके थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वगैरह कितने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वगैरह हैं? थर्ड पार्टी मतलब वो हमको नहीं आता है, अच्छा। सप्लायर करते हैं, हाँ, हम लेते हैं। लाइक मिनिमम कितने रहेंगे, कितने ब्रांड्स के रहेंगे? मतलब बहुत रहता है, LG, सैमसंग, सोनी, हम्म। जो अभी ब्रांड है। उनका खुद का LG अभी नहीं उनका भी है, हाँ सैमसंग का उनका एक पर्टिकुलर वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स में बेचते हो ऑलमोस्ट VRL में ही बेचते हैं ऑलमोस्ट। और एक SRS, नहीं तो और एक MTR करके है, वो उसमें इतना बेचते ऑलमोस्ट हाईएस्ट 70% VRL में बेचते हैं। हाँ उनका कैसा रहता है, वही अनलोड, वही चेकिंग, वही ये रहता है, नहीं इसमें कुछ नहीं करता। हाँ, हम थर्ड पार्टी VRL को बुकिंग का ये नहीं लेते। हाँ। और कुछ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे करते हैं आप लोग, लाइक कस्टमर को सेटिस्फाई, वो जो भी उसके नीड्स वगैरह है उससे कैसे उसको सेटिस्फाई वगैरह? वो तो मतलब ये सेल्स डिपार्टमेंट भी रहता है, अगर कस्टमर एक आ गए पूछते हैं ऐसे ऐसे है क्या करके, मेरे पास नहीं रहा तो वो कस्टमर का कॉल नंबर लेते हैं, अगर मेरे पास। So ma'am, how do you categorize the stock levels in the warehouse? मतलब हम कैटेगरी वाइज, मतलब स्मॉल आइटम ऊपर एक रैक किए है, प्रेशर कुकर के लिए एक रैक, मिक्सी के लिए एक रैक, और वाटर प्यूरिफायर छोटे के लिए रैक की एक 8 रैक है ऊपर वाला, ऊपर में रहता है। छोटा कैटेगरी के लिए ऊपर गोडाउन है, और जो वॉशिंग मशीन फ्रिज के लिए इंडालगा में बड़ा ये है, वहाँ पे भी सेक्शन करके रखे हैं। वॉशिंग मशीन का एक रो है और फ्रिज का रो है, ब्रांड वाइज रखे हैं, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होता है। कैटेगरी वाइज मतलब जब काउंटर वाले आते हैं वहीं से लेके जाते हैं, ढूंढने के मतलब नहीं है, काउंटर वाइज डाले हैं, वहाँ पे मेंशन किए प्रेशर कुकर के लिए, वहाँ पे रखे गए हैं। जब कस्टमर के लिए काउंटर को चाहिए, मतलब बैक स्टॉक चाहिए, तो ऊपर आके रैक से लेके जाते हैं। So, and what are the documents that you all face in the products warehouse, from warehouse to store, the products which came? Which डॉक्यूमेंट्स फुल documents क्या क्या आते हैं? हाँ, नहीं मैनुअल नहीं, हमारा सब मैनुअल तो यहाँ पे नहीं है, इनवॉइस भी नहीं है, इन आउट कुछ भी मैनुअल नहीं है, सभी ये है। इनके लिए भी डॉक्यूमेंट है, आउट के लिए भी हमारे इसमें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल थोड़े है। डॉक्यूमेंट्स आप बता सकते हैं जो आप क्या क्या यूज करते हैं? मतलब अगर अब मुझे सप्लायर से आता है ना, तो सप्लायर के लिए अलग मेनू है वहाँ पे। हम अगर LG इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से आया है, तो कंपनी का नंबर नेम लेके वो स्टॉक सब इन करते हैं, टैली करते हैं, इनवॉइस रेज करते हैं, इनवॉइस को स्कैन करते हैं, वो हेड ऑफिस में चेक करते हैं, तो वो सब इनवॉइस जाता है, हेड ऑफिस में जाता है, पेमेंट प्रोसीजर सब वो देखते हैं, वो हो गया कंपनी से, सप्लायर से आने से। और BDC से वहां से आया है ना, ब्रांच इन होता है ना ब्रांच का, उसको एक मेनू अलग है, तो वहां से ब्रांच से अगर आप बोले ना धारवाड़ हुबली से आया है करके, तो आउट किए रहते हैं, हम इन करते हैं, तो वो स्टॉक को भी हमको मालूम पड़ता है कि ये धारवाड़ से आया, सप्लायर से नहीं आया है, तो उसको मेनू अलग है। और एक है कि अगर हमको सप्लायर से डिफेक्टिव आया है, वो सेंड करने का है, तो उसको मेनू अलग है, डिफेक्टिव सेंड करके रहता है सप्लायर के लिए। अगर मुझे अभी वो मुझे सेंड किया, मैं भी ऑब्वियसली अलग ब्रांच को सेंड करती हूँ, तो ब्रांच आउट करके रहता है, उसमें हम आउट करते हैं, तो यहाँ से स्टॉक का आउट इन करेक्ट प्रोसीजर, और उसको सॉफ्टवेयर ही रहता है, ट्रांसपोर्ट में पकड़ते हैं ना, वो फेसेस होता है। एक तो सप्लायर को डिफेक्टिव सेंड करने टाइम हमको आता है, और एक तो हमको दूसरे ब्रांच को अबव 50,000 का वैल्यू का कुछ आइटम भेजते तो वहाँ पे आता है, और एक हमको कस्टमर को अबव 50,000 वो परचेस किया, तो उसको डिपार्टमेंट अलग है, डिलीवरी सेक्शन करके है, वहाँ पे वो ईबे बिल जनरेट करते हैं। इतना डॉक्यूमेंटेशन हमारा होता है। So thank you, ma'am. We would be appreciated with your kind words, and it would really help us in our project work and as well as our knowledge. And we would like to thank you so much for giving your patience and your time. Thank you once again. Thank you. All the best.